دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے بچہ مجھے واپس مل جائے. حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی طریقہ ارشاد فرمائے میں اسے خواب میں دیکھ لوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اسے ایک عمل بتا دیا کہ یہ عمل کرو تو تم اپنی بچی کو خواب میں دیکھ لو گی. اس عورت نے اب وہ عمل کیا, وہ وظیفہ کیا. وہ دنیا سے جانے والی جو اس کی بچی تھی, اس کی بیٹی جو تھی, وہ اسے خواب میں نظر آئی, مگر عجب حال میں نظر آئی. اس نے دیکھا کہ اس کے بدن پر تار کول کا لباس ہے, یعنی ڈامر کا لباس ہے, گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. یعنی وہ اس کو عذاب ہو رہا تھا. ماں تھی اور اپنی بیٹی کی یاد میں تڑپ رہی تھی, مگر جب خواب میں اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا, وہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو کانپ اٹھی. دوسرے دن سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کو خواب سنایا کہ حضور میری بیٹی تو اس حال میں ہے. اب بڑے غمزدہ ہوئے. کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو دیکھ کر وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی, حضور آپ جانتے میں کون؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری ایسی حالت بتائی تھی. حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ تم تو عذاب میں تھی, تمہاری ماں نے بتایا کہ تم تو بڑی تکلیف میں تھی, آج تو تم جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہو. تو وہ لڑکی نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا. وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور قبرستان کے قریب سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا تھا. واقعی میں عذاب میں تھی, مگر میری قبر جس قبرستان میں تھی وہاں سے ایک عاشق رسول کا گزر ہوا اور اس عاشق رسول نے ایک درود پاک پڑھ کر قبر والوں کو ایصال ثواب کیا. یعنی ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے درود پاک پڑھا. اللہ کریم نے اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو دور کر دیا. اب ذرا غور کیجئے, میرے والد گرامی دنیا سے گئے, لیکن اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دنیا سے رشتہ دار چلے گئے, قبرستان بھی ہم جاتے ہیں, لیکن یہ ایصال ثواب جو ہے نا, یہ بڑا کمال کا کام ہے. اور اللہ کی رحمت دیکھو کہ رب کریم نے ایک طریقہ باقی رکھا ہے اس کی رحمت نے, کہ جو چلے گئے, اللہ نہ کرے اگر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے تو ہم انہیں ثواب پہنچا سکتے ہیں, ہم انہیں نیکیاں پہنچا سکتے ہیں. اور ایسا پاسبل ہے کہ بندہ تو گناہگار گیا ہو, گناہگار ہو اور اس کی وجہ سے عذاب بھی ہو رہا ہو, مگر دوسرے مسلمانوں کی دعاؤں کی وجہ سے, ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے. اور ایک اور بات پتہ چلی کہ درود پاک کی کیا شان ہے. درود پاک پڑھ کر ایصال کریں تو قبروں سے عذاب دور ہو جائے. جو خود درود پڑھتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا, اس کی قبر کا عالم کیا ہوگا. تو اس سے کئی باتیں, اس ایک واقعے سے میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ درود پاک کی کثرت کیجیے, پھر نیکیاں کر کے اپنے مرحومین کو یاد رکھیے, انہیں بھول نہ جائیے. آج آپ اپنے مرحومین کو بھول جائیں گے, کل ہو سکتا ہے ہمارے بعد والے ہمیں بھول جائیں. تو ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے, انہیں نیکیاں پہنچانی ہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اپنے بیان کو 2-3 حصوں میں کرنے کی کوشش کروں گا. ماں باپ کی فرما برداری, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی یوں سمجھیے کہ بات ماننا, اس پر بہت بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہنے چاہیے, ٹھیک ہے نا, کہ اس کا احساس اجاگر ہو کہ ماں باپ کے مقام کیا ہے. لیکن ماں باپ کی جو نافرمانی ہے, ماں باپ کا جو دل دکھانا ہے, ماں باپ کو جو تکلیف پہنچانا ہے,
शायद लोग इसको कोई बड़ा मामला नहीं समझ रहे, और आजकल माँ बाप बड़े परेशान हैं। आजकल बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि अगर माँ बाप तकलीफ में है तो हमारा क्या बनेगा, हमें कितना बड़ा गुनाह मिलेगा। या कोई नॉर्मल सी बात है कि ठीक है माँ बाप रात को जाग रहे हैं, बच्चा नहीं आ रहा, माँ बाप को जवाब नहीं दे रहा, उनकी बात नहीं मान रहा, उनके दिल में तकलीफ पहुंचा रहा है, या अल्लाह ना करे उससे बढ़कर माँ बाप को बुरा भला कह रहा है, माँ बाप से लड़ रहा है। ये कितना बड़ा गुनाह है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, शायद इस तरफ तवज्जो नहीं। तो शुरू में मैं इंशाअल्लाह माँ बाप की नाफरमानी किस कदर बुरा अमल है इस पर कुछ बात करेंगे। फिर माँ बाप के हुकूक शरीयत हम पर क्या लागू करती है कि हमें माँ बाप के साथ रहना कैसे है, और उसके बाद हम इंशाअल्लाह कुछ ईसाले सवाब पर बात करेंगे, क्योंकि हमें पता चले कि जिनके माँ बाप हयात हैं उन्होंने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, और जिनके चले गए हैं अब कैसे ईसाले सवाब के जरिए हम उनकी गोया हेल्प कर सकते हैं, उनको तोहफे भिजवा सकते हैं। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे कि एक आदमी आया और अर्ज करने लगा कि हुजूर एक नौजवान है और आखिरी उसकी जिंदगी के लम्हात है, सकरात का आलम है, हम इसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो पढ़ नहीं पा रहा, उसकी जबान पर हुजूर कलमा जारी नहीं हो रहा है। हुजूर ने फरमाया काना युसल्ली, क्या वो नमाज पढ़ता था? आने वाले दर्स की जी हुजूर वो नमाज पढ़ता था। तो आका अलैहिस्सलाम उसके साथ तशरीफ ले गए और नबी पाक जब वहां गए तो आपने नौजवान के पास जाकर फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ए नौजवान कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अर्ज की ला अस्ततीउ, हुजूर मैं नहीं कह पा रहा, मैं नहीं कह सकता। फरमाया लिमा, क्या वजह है, क्यों नहीं कह पा रहा? तो किसी ने अर्ज की काना या अक्कु वालिदतहु, का हुजूर ये अपनी माँ की नाफरमानी करता था। नबी पाक ने फरमाया क्या इसकी वालिदा जिंदा है? लोगों ने अर्ज की जी हाँ हुजूर इसकी माँ जिंदा है। नबी पाक ने फरमाया उससे बुलाओ। वालिदा आई, हाजिर हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये तुम्हारा बेटा है? अर्ज किया जी हुजूर ये मेरा बेटा है। आका फरमाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर बहुत बड़ी आग भड़काई जाए और तुम्हें कहा जाए कि अगर तुम इसकी सिफारिश करो तो इसे छोड़ देते हैं वरना इसे आग में जलाएंगे, क्या तुम इसकी सिफारिश करोगी या जल जाने दोगी? देखो ये होती है माँ। वालिदैन कमाल के लोग होते हैं, इनको सताओ तकलीफ पहुंचाओ, लेकिन जब बच्चे को तकलीफ पहुंचने लगती है तो वो अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह, आका अब तो मैं इसकी सिफारिश करूंगी। नबी पाक फरमाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल और मुझे गवाह बनाकर कहो कि तुम इससे राजी हो। वो माँ अर्ज करती है या अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुझे और तेरे रसूल को गवाह बनाती हूँ कि मैं अपने बेटे से राजी हूँ। नबी पाक ने अब उस नौजवान से फरमाया ए लड़के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नौजवान ने नबी पाक के पीछे ये सारे अल्फाज दोहरा दिए, उसकी जबान पर कलमा जारी हो गया। फिर मेरे आका ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। आका फरमाते सब तारीफें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने मेरे वसीले से इस नौजवान को दोज़ख से बचा लिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि माँ बाप नाराज होना तो मरते वक्त जबान पर कलमा भी जारी नहीं होता। ईमान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना हमारे पास। अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या बचेगा? तो जिन असबाब रीजंस बयान हुए अहादीस में कि जिन चीजों की वजह से ईमान बर्बाद हो सकता है, उन रीजंस में अहादीस में वालिदैन की नाफरमानी भी है। लेकिन क्या हमने इस बारे में कुछ सोचा? बाज उलमा फरमाते हैं बुरे खात्मे के 4 असबाब हैं। देयर आर 4 रीजंस, ठीक है, जो बुरी मौत की तरफ ले जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होगा? किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए, अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, वो समझता है मेरी दुनिया खत्म हो गई। मगर यकीन जाने दुनिया की सारी नेमतें चली जाएं और ईमान सलामत है ना तो वो बंदा फिर भी कामयाब है। लेकिन उसके पास दुनिया भर की दौलत है और ईमान ही चला गया तो उससे बड़ा नाकाम कोई नहीं है। तो बुरी मौत के 4 असबाब बयान किए गए। नंबर 1 नमाज में सुस्ती करना, नंबर 2 शराब पीना, नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी और नंबर 4 मुसलमानों को तकलीफ। 4 काम धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। नमाज पढ़ना कौन है? बहुत बड़ी तादाद है जिनकी नमाज कज़ा होती है, हालांकि सोचते नहीं कि नमाज में सुस्ती ये बुरे खात्मे का सबब है। फिर शराब पीना, माँ बाप को सताना। प्लीज जिनके माँ बाप है ना, माँ बाप की खिदमत को हल्का ना लें और माँ बाप की जात को भी कोई छोटी जिम्मेदारी ना समझे। नाराज हो गए ना तो रब भी नाराज हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कमाल की हदीस, आका चंद जुमलों में पूरी बात फरमा देते थे। आका फरमाते हदीस पाक का मजमून है माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। एक ही लाइन है मगर इस लाइन में पूरा फलसफा बयान कर दिया कि माँ बाप राजी तो रब राजी और माँ बाप नाराज तो रब भी नाराज। अब माँ और बाप को सताने वाले, माँ बाप के नाफरमान के ऐसे ऐसे अंजाम लिखे हुए हैं। वो बच्चे जिनके माँ बाप हयात हैं, खुदा के वास्ते गौर से सुनो। हजरत अव्वाम बिन हौशब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते एक मरतबा दौरान सफर में एक मोहल्ले में ठहरा। इस मोहल्ले की तरफ एक कब्रिस्तान था और वहां जब असर का वक्त होता था तो कब्रिस्तान में से एक कब्र शक हुई, कब्र फटी और उसमें से एक कब्र में से आदमी निकला जिसका सर गधे जैसा था और उसने 3 मरतबा गधे जैसी आवाज निकाली। फिर कब्र में गया और कब्र बंद हो गई। आप कहते हैं बड़ा हैरान हुआ। तो करीब मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो
ऊन वगैरह काट रही है। एक खातून मुझसे कहने लगी तुम इस बूढ़ी औरत को जानते हो? मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। खातून ने कहा ये इसकी माँ है। जब मैंने पूछा कि इसका वाकया क्या है, तो खातून कहने लगी कि वो शख्स शराब पिया करता था, शाम को जब वो घर आया करता तो उसकी माँ उससे कहती थी मेरे बेटे अल्लाह से डर, कब तक तू शराब पीता रहेगा। माँ उसे समझाती थी। वो बदबख्त अपनी माँ को पता है क्या जवाब देता था? कहता था तू कब तक हेंगती रहोगी जब तक जैसे गधा हेंगता है। माँ को कहता था गधे जैसी आवाज निकालती हो तो मुझे क्यों समझाती हो। खातून ने कहा कि जब ये मरा था ना, असर का वक्त था, अब रोज असर के वक्त इसकी कब्र फटती है, ये कब्र से बाहर निकलता है और गधे जैसी आवाज निकालता है। सोचिए, आज अल्लाह करे कि हम में से कोई ऐसा ना बैठा हो, लेकिन ऐसे अफराद हैं जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने माँ बाप को माद अल्लाह गालियां देते हैं, यहां तक के बारे में सुना कि माँ बाप को मारते हैं। कैसे लोग हैं, खुदारा इनकी दुआएं। लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं। आज जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनको मिलने के लिए अपने माँ बाप से कब्रिस्तान जाना पड़ता है। कभी कभी गोट अटक जाती है ना, कोई काम अटक जाता है, तो आप क्या करते हैं? जिनकी माँ होती है, माँ के पास चले जाते हैं, माँ फंस गया हूं दुआ कर दो, है अबू परेशान हूं दुआ कर दो। अब सोचो जिसकी गोट अटके और माँ बाप भी ना हो, जिसका काम अटक गया हो, माँ बाप से कह भी ना सकता हो, उसके दिल पे क्या बीती होगी? काश मेरी माँ होती तो मैं दुआ करा लेता, काश मेरा वालिद होता मैं उसके कदमों में बैठ जाता। अब कब्रिस्तान जाकर कहना पड़ता है कि आप तो चले गए दुनिया से, आप भी दुआ करें और अल्लाह से भी अर्ज कर रहे हैं कि मौला अब इनके सदके हमारे काम बना दे। तो खुदारा इन्हें राजी करके भेजना। जाना इन्होंने भी है, जाना हमने भी है, मगर खुश नसीब वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप उनसे राजी होकर गए, उनसे खुश होकर गए, उनके दिल उनसे मुतमईन थे। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि माँ को राजी ना कर सका और माँ दुनिया से चली गई, बाप को राजी ना कर सका और बाप दुनिया से चला गया। तो माँ बाप जिसके पास है ना, ये जन्नत का टिकट है, और ये टिकट हासिल करना है, अल्लाह को राजी करना है, वरना मारे जाएंगे। मैं आपको बुखारी शरीफ की पढ़ रहा था, आज बयान तैयार कर रहा था जब, कि कबीरा गुनाह, बहुत सारे कबीरा गुनाह है, लेकिन जो बड़े कबीरा गुनाह बयान किए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों के मुताल्लिक फरमाया कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, ये पहला कबीरा गुनाह बयान फरमाया। सेकंड नंबर पे नबी पाक ने क्या फरमाया? वालिदैन की नाफरमानी कर। तीसरे नंबर पर फरमाया नाहक कत्ल करना। चौथे नंबर पर फरमाया झूठी कसम खाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, कबीरा गुनाह का जब जिक्र हो रहा है, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नाहक कत्ल करना और झूठ बोलना। उलमा फरमाते हैं कि इतने सारे कबीरा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है ना, है? उस शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह जहां जहां नबी पाक ने कबीरा गुनाह बयान किए ना, माँ बाप की नाफरमानी बयान। आप सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। लोग कहते हैं यार माँ बाप तो बस ठीक है ना, नाराज हो गए तो क्या हो गया, बाद में मना लेंगे। तुम्हें क्या पता वो राजी होंगे कि नहीं। तुमने आज दिल दुखाया, कभी बड़ी आवाज में बात की, कभी उनकी बात ना मानी, हो सकता है तुम्हारी वजह से वो रो पड़े हो, तुम्हें एहसास नहीं है। हालांकि शरीयत ये कहती है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए माँ बाप के दिल को साइड में रख दें, ठीक है ना, मैं मुसलमान तो हूं ना, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा तो मेरी मगफिरत होगी। अल्लाह और उसका रसूल ये फरमा रहे हैं, शरीयत ये सिखा रही है कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया वो माँ बाप की नाफरमानी बताया। अच्छा, अल्लाह करीम ने जहां अपनी इताअत का बयान किया है, अपनी फरमाबरदारी का बयान किया, कई जगहों पर उसके फौरन बाद माँ बाप की फरमाबरदारी का बयान किया। तो उलमा इसकी वजह बयान करते हैं कि अल्लाह खालिक हकीकी है, हकीकी मानों में पैदा करने वाला रब है, और वालिदैन जो है वो सबब बने कि जिनकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए। तो खालिक हकीकी की इबादत पहले है, खालिक हकीकी का शुक्र अदा करना पहले है, और उसके फौरन बाद फरमाया कि माँ बाप का एहसान मानो, माँ बाप का हुक्म मानो, उनकी इताअत करो। बिल्कुल इसी तरह खालिक हकीकी के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह ठहरा है, उसके बाद बड़ा गुनाह ठहरा माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना। मैं आपको आपकी शरीयत बता रहा हूं कि हमें शरीयत ये कहती है कि अगर रब को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है, तो माँ बाप को राजी करना, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी। अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह यह है, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी की हदीस,